Haryana. The story from Haryana is going to shock you to the core. What was meant to be a day of practice turned into a nightmare for Hardik Rathi, a national-level teen basketball player. On your screen is the CCTV footage that captures the shock and chaos on a basketball court in Rohtak's Lakhan Majra area. As Hardik soared for a dunk, the pole gave way, broke in half and fell right on his chest, crushing it. The pole was old, damaged and unchecked. Result, Haryana lost a young and aspiring future athlete, not to the game, not to competition, but to negligence, to structures that should have been safe, to systems that should have protected them. This young athlete's dreams ended because a pole was left to rot. Now, viewers, chilling footage shows Hardik practicing alone on the court. He runs from the three-point line, jumps and touches the basket, a routine move for any basketball player. Hardik completes his first maneuver without any kind of a problem. He goes again, and this time, when he clutches the rim, the pole gives way and falls on him directly, crushing his chest. Within seconds, we see friends and playmates rushing to help. They lift the pole, but by then, it was too late. The 16-year-old talent died soon after. Viewers, this tragedy exposes some serious negligence in sports facilities. It raises questions about safety standards as well as accountability. And we have some breaking inputs coming in at this point in time, as outrage over deaths is something that we are witnessing right now. In a swift action, we are getting to know that 2 officials have been suspended. The state government there, in fact, has sought report from 22 districts as the probe widens. My colleague Manoj is now joining us live right now for more on this. मनोज, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 मौतें हुई हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे, इसको लेके आज काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, खेलों को लेकर बहुत ज्यादा पुश किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। जी बिल्कुल, हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा जाना जाता है अपने खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सबको मालूम है, चाहे कोई भी चैंपियनशिप हो, ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो। और इस तरह की घटना जब होती है तो सबको बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और एक नहीं, 2 जाने गई हैं, एक ही तरीके से गई हैं, एक ही गेम के जो प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, उसी गेम के दोनों प्लेयरों के साथ एक जैसी घटना हुई है। अब इस मामले में हरियाणा सरकार ने जहां जांच कराने के आदेश दिए हैं, तो वहीं कुछ अधिकारियों पर जो कार्रवाई है वो भी की गई है। सस्पेंड कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और कुछ कोचेस। इसके साथ साथ सभी जिलों के जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनको पत्र लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि वो तुरंत जितना भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी तुरंत जांच करें, और अगर कोई जर्जर है तो उसका उपयोग तुरंत बंद किया जाए, और जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है तमाम जिलों को उसकी रिपेयर कराए या फिर जरूरत के हिसाब से उनको रिप्लेस कराएं। तो अब जाके सरकार जागी है, और खासकर जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद सरकार की जो नींद है वो अब टूटी है। जी, All right, thank you very much, Manoj. Appreciate you joining us with your inputs on this story. Now, viewers, within just 2 days, 2 young basketball players have lost their lives due to crumbling infrastructure in Haryana. Shockingly, 2 days ago, a similar incident took place in Haryana's Bahadurgarh district. 15-year-old Aman was practicing at a stadium when a basketball pole fell on him. Aman suffered internal injuries and took his last breath at the hospital. ये सड़ा हुआ बास्केटबॉल का पोल, ये लगी हुई जंग दरअसल सरकारी व्यवस्था में लगी हुई जंग को दिखाता है, जिससे हरियाणा के एक होनहार खिलाड़ी जो कि 16 साल का हार्दिक था, उसकी जान ले ली। और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बास्केटबॉल का पोल सड़ चुका था, जिसे 2 से 3 साल पहले बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो बदला नहीं गया। आप देखिए, अब मैं हाथ से छूकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पोल है और इसकी हालत देखिए। अगर इसको आप हाथों से तोड़ेंगे, ये देखिए, ये लोहा इतना गल चुका है, ये हाथों से टूट रहा है और टूट कर गल रहा है। ये देखिए, ये कल यानी कि मंगलवार को जब तकरीबन 10
10:15 के बजे के आसपास हार्दिक अपने साथियों के साथ इस बास्केटबॉल के कोर्ट में मौजूद थे और जब यहाँ पर वो बॉल को इस बास्केट में डालते हैं तो उसके बाद ये सड़ा हुआ जो पोल है वो एकदम से उखड़ कर जो है नीचे आ जाता है। और आप देखें तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा जो है इस तरह के ट्रेडिशनल बास्केटबॉल पोल के लिए किया जाता है, लेकिन आप देखें तो ये पूरा जंग से भरा हुआ है। ये देखिए, ये टुकड़े देखिए, और ये जिस तरीके से बिखरा हुआ है, इसी तरह से शायद सरकार में जंग लगी है और युवाओं के सपने बिखरे हुए हैं। लेकिन आप हालात देखिए, ये देखिए, तो ये पूरा यहाँ से बेस से टूटता है और उसके बाद पलटता है और सीधा आकर जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो हार्दिक की छाती पर आकर गिरता है, जिसके बाद उनकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि गांव वालों ने अपनी व्यवस्था और सुविधा के लिए जो ये बास्केटबॉल जो पूरा तैयार किया, ये मैदान, पूरी ये व्यवस्थाएं, लेकिन जिस पे सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, बजट दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि हार्दिक ने फिलहाल अपनी जान गंवा दी है। सवाल ये है कि जब 2-3 साल पहले इस पोल को बदल दिया जाना था, एक बेसिक सा पोल जिसका वजन बताया जाता है कि तकरीबन 750 किलो के आसपास होता है, वो क्यों नहीं बदला गया? मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक करके फाइलों को क्लियर क्यों नहीं किया? और इस पूरे अपराध को, इस पूरी हत्या का जिम्मेदार किसे माना जाए? एक बदहाल सिस्टम, सरकारी अव्यवस्था, उदासीनता, या फिर खेलों को लेकर जो अरुचि हरियाणा में पैदा होने लगी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। On the other hand, viewers, politics has already started over painful deaths. Rohtak MP Dipinder Hooda has blamed the BJP and its administration for not taking care of sports infrastructure in the state of Haryana. Another Congress leader leveled some serious allegations, claiming that government in Haryana sanctioned 8 lakh rupees for the stadium, but due to government negligence and the negligence of officials, this money was not spent on the stadium. Listen in. इसमें क्या जांच की बात है? 11 साल से हरियाणा के किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव के लिए सरकार ने खेल बजट जारी नहीं किया है। दुखद बात यह है कि ये सरकार की खेल खिलाड़ियों के प्रति बेरुखी का तो सबूत है ही, ये लापरवाही का जो मामला है, ये अपराध की श्रेणी में मामला आना चाहिए। And viewers, we have a reaction coming in from the Chief Minister of the state as well. BJP has assured strict action and thorough inquiry into this case. Listen in. मुख्यमंत्री जी, रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूटकर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला, हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। With this, we will slip into a very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.